This webinar is going to be on the SHA. What are the key points that should be noted while signing an SHA? So we are Tax Mantra. Tax Mantra Global is a 360-degree tax and legal firm, and I am managing the investment and legal practice at Tax Mantra Global. So starting with the first thing, uh, let's make this session an interesting one. I would do this session in both Hindi and English, a mix of Hindi and English, so that everyone can understand, and let's make it an interesting webinar for every one of us. So this webinar, this session, this SHA is going to address areas for both the founders as well as investors. Uh, so let's start. So let's come to the intro part. What is basically an SHA? SHA is nothing but a shareholders agreement, or share. Sometimes it is called share subscription cum shareholders agreement. This is a contract between two parties, two or more parties, which involves the founders, promoters, the investee company, and the investors. Why it is executed? This is primarily executed to define the rights and obligations of each party and defining the terms and conditions of raising funds from the investors. So every one of us know that why an SHA is executed. Mm, it basically defines the rights and responsibilities of the parties. बहुत सारे पार्टीज इसमें पार्टी बनते हैं, जैसे कि फाउंडर होते हैं, प्रोमोटर होते हैं, इन्वेस्टेड होते हैं, इन्वेस्टी कंपनी जो होती है जिसमें फंड रेज किया जाता है, वो भी एक पार्टी होती है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइनिंग के टाइम पे. तो सारे के सारे लोग जो है एक एग्रीमेंट पे पार्टी रहते हैं, और सबका राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, and accordingly the SHA is drafted. uh, तो इसमें जो है एक SHA जो होता है वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है. मतलब इट माइट बी ऑफ 30, 35, 40, 50 पेजेस. तो उसमें से आज हम लोग क्या करेंगे, 5 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को हमने चुना है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे. वी विल टॉक एंड स्पीक अबाउट 5 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस which are very importantly watched and which should be closely watched when an SHA is being signed. तो उसमें से पहला क्लॉज क्या होता है? एवरीवन must have heard about tag along rights. So what is tag along rights? This is a right usually given to the investors to sell their shares to an interested person. तो इसमें क्या होता है ना कि टैग अलोंग राइट्स जो है ये एक इन्वेस्टर का राइट होता है. उसमें इन्वेस्टर को ये कहा जाता है कि अगर कोई भी प्रोमोटर या फाउंडर अपने शेयर्स को किसी थर्ड पर्सन को बेच रहा है, तो उस केस में इन्वेस्टर के पास राइट होता है कि वो अपने आप को टैग कर ले, सो दैट the promoters and the founders shall be liable to sell their shares as well to the third person. ये क्यों होता है हमको ये समझना है. Why this particular clause is being put in an SHA? The major reason is, uh, when the SHA is signed, it might happen that the founders and promoters, after a certain point of time, because they're closely working on the business of the company, after a certain point of time they might see that the business might not be working well. So in that case they might try to sell this to some other party. So in that case what happens, the investor who has usually put in the money, who has invested in the company, this has usually been done for the growth of the company, and they want some return from the company. So if the promoters exit bef- before intimating it to the investors, तब उनके लिए लॉस हो सकता है. अगर इन्वेस्टर को बिना बोले, क्योंकि इन्वेस्टर खाली कंपनी पे पैसा नहीं लगाती है, इन्वेस्टर फाउंडर्स पे भी पैसा लगाती है, क्योंकि वो
कौन से फाउंडर है जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट किया है। खाली कंपनी का जो नेचर होता है, जो बिजनेस होता है, वो मैटर नहीं करता है, बल्कि फाउंडर्स भी मैटर करते हैं। तो आपका कंपनी जब आप चला रहे, अगर आप ही नहीं रहोगे, तो उस केस में इन्वेस्टर शायद उस वो पैसा नहीं लगाता। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है फाउंडर इन्वेस्टर्स के लिए, कि अगर फाउंडर्स निकल रहा है किसी एक स्टेज पे, तो इन्वेस्टर्स भी उसी टाइम पे एग्जिट ले लेगा। तो ये अपना अपना बचाव के लिए इन्वेस्टर्स ये एक क्लॉज लगाते हैं, विच इज टैग अलोंग राइट्स। सो दे हैव द राइट टू टैग अलोंग विद द सेलिंग शेयर्स ऑफ द इन्वेस्ट विद द ऑफ द प्रोमोटर्स और फाउंडर्स। टैग अलोंग राइट्स काफी बड़ा होता है, उसमें काफी सारे सब क्लॉजेस होते हैं। Like when the tag along rights, when someone exercise their tag along rights, what happens? So how will the notice be given? What is the timeline for that notice? कितने दिन का पीरियड देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स लोगों को? अगर कोई भी एक फाउंडर या प्रोमोटर अगर कोई थर्ड पार्टी को ढूंढ लेता है जिनको उन्हें शेयर बेचना है, then in that case the investors have to be intimated accordingly. What would be the timeline for that intimation? How would they be intimated? The process of intimating the investors. So these all things should be mentioned in the tag along rights. How is it important? ये बहुत ही ये जो इंपॉर्टेंस है, ये खाली इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बट प्रोमोटर्स एंड फाउंडर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? जब आप इसको ड्राफ्ट कर रहे हो, जब आप साइन कर रहे हो, तो आप देख लो इसमें कि उसका जो सब क्लॉजेस है, उसमें जो टाइमलाइन की बातें की जा रही है, कैसे उनको नोटिसेस देना है, उनका कैसा टाइप का राइट्स रहेगा, please look into them very properly before the SHA is signed and executed. So that has to be drafted very properly. इसमें बहुत सारे फाउंडर्स जो है, उनका ये भी सवाल रहता है कि if tag along rights is in the is on the behalf or is in the support of investors, then why should it be there in the SHA? इन्वेस्टर्स जो आपके कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनका मोटिव रहता है कि उनको उससे रिटर्न चाहिए। जो फाउंडर्स पैसा उठाते हैं कंपनी के लिए, उनका मोटिव रहता है कि कंपनी को ग्रोथ दिलाना है। तो जब एसएचए एग्जीक्यूट होता है, साइन होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दोनों पार्टीज के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। उसमें फाउंडर्स आपके बेनिफिट देखेंगे, आपकी कंपनी के सॉरी द इन्वेस्टर्स आपके कंपनी के बेनिफिट देखेंगे, आपके बेनिफिट देखेंगे, एंड इन द सेम वे द फाउंडर्स एंड द प्रोमोटर्स शुड आल्सो लुक इनटू द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है, एंड thus this tag along rights is usually a very common clause in the shareholders agreement. Coming to the second important uh, clause of a shareholders agreement is right of first refusal. Right of first refusal क्या होता है? This is very much similar to tag along rights, but not exactly tag along rights. The right of first refusal allows the existing shareholders of the company to transfer the shares to the other shareholders, subject to the offer to purchase the same shares be given to all the existing shareholders on the same commercial terms and price. What does that mean? इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रोमोटर, कोई फाउंडर अपने शेयर्स को किसी भी थर्ड पार्टी को बेच रहा है या बेचना चाहता है, उस केस में या फिर फाउंडर्स और प्रोमोटर्स को छोड़ के अगर एसएचए साइन होने से पहले तक कोई भी दूसरे इन्वेस्टर आ गए हैं कंपनी में, तो इसमें ये बोला जाता है कि अगर आप किसी भी दूसरे थर्ड पर्सन को आप अगर शेयर बेच रहे हैं, तो पहला जो राइट होगा वो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दोगे, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को भी देना पड़ेगा। तो let me put it in a very clear example which would make it very clear in understanding how does this right of first refusal work. So say there is a shareholder, Mr. X. Mr. X intends to transfer 500 shares to someone else who is not an existing shareholder of the company. He would transfer it in his individual capacity as a secondary transfer. उसके पास मिस्टर एक्स के पास 500 शेयर्स है, उनको वो 500 शेयर्स ट्रांसफर करना है जो उन्हीं का है।
और वो ये थर्ड पार्टी को करना चाहते हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है। उस केस में मिस्टर एक्स को दूसरे जितने भी शेयर होल्डर कंपनी में है उनको पहले ऑफर करना पड़ेगा, और ऑफर जो होगा उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन होगा, उसका जो प्राइसिंग होगा, जिस प्राइस में आप बेचना चाहते हैं सेम प्राइस में आपको उनको भी ऑफर करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। अगर वो लोग डिनाई करते हैं कि नहीं मेरे को नहीं खरीदना है, इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डिनाई दैट दे डू नॉट वांट टू परचेज द शेयर्स दैट यू विश टू सेल टू द थर्ड पार्टी, in that case you can go ahead and sell the shares to a third party, but the right of first refusal remains with the investors and the existing shareholders. तो इसमें क्या होता है कि आप आर्बिट्ररीली जाके कोई भी प्रोमोटर, कोई भी फाउंडर, कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आर्बिट्ररीली जाके किसी भी थर्ड पर्सन को अपना शेयर्स नहीं बेच सकता। इसके लिए पहले जो है आपको एक नोटिस देना पड़ेगा सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आपको ये बेचना है, इस प्राइस पे बेचना है, इस टर्म्स में बेचना है, ऑन द सेम टर्म्स ऑन विच यू विश टू सेल इट टू द थर्ड पार्टी। अगर वो लोग इंटरेस्ट देते हैं कि हाँ आप बाहर मत बेचिए, आप मेरे को बेच दीजिए, देन द फर्स्ट राइट गोज विद देम, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एंड उस केस में कैसे होता है, उस केस में ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। अगर किसी शेयर होल्डर का, अगर किसी इन्वेस्टर का आज के डेट में 10% का होल्डिंग है, इफ एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और इन्वेस्टर हैज a current holding of 10-15%, whatever it is, that person would be able to exercise his rights to the same proportion of the shares which are being offered for sale. So that is how the right of first refusal works. So a person who is an existing shareholder, existing investors would have the first right to refuse your when you sell the shares to a third party. पर अगर आप अपना शेयर्स किसी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेच रहे हैं जो कि आज के डेट में शेयर होल्डर है, मतलब मिस्टर एक्स को 500 शेयर सेल करना है मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, आप उन्हीं को ट्रांसफर करना चाहते हैं, सेकेंडरी ट्रांसफर आप सेल करेंगे, that is totally fine, and in that case right of first refusal won't trigger. राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल में भी, इन राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल टू देयर आर सेवरल सब क्लॉजेस, उसमें भी नोटिसेस वगैरह कैसे जाएंगे, हाउ द नोटिसेस वुड गो, हाउ इट वुड बी सर्कुलेटेड, व्हाट इज द टाइमलाइन विद इन व्हिच द इन्वेस्टर्स हैव टू respond or any other shareholders have to respond, all these are mentioned in the right of first refusal. There are sub clauses of right of first refusal and those things are mentioned there. So उसमें सारा चीज मेंशन करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली दैट हैज टू बी ड्राफ्टेड वेरी क्लियरली एंड प्रॉपर्ली, ताकि आगे चल के कभी अगर ये सिचुएशन आता है तो आपको उसमें लिटिगेशन फेस ना करना पड़े। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वो है रिजर्व मैटर्स। बहुत ही कॉमन है, any founders who have raised a funding in their company would be very much aware about the reserved matters. Reserved matters क्या होता है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से there are several provisions where a particular अथॉरिटी चाहिए होता है, जैसे कि कोई एक डिसीजन है जिसमें शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन चाहिए, इट माइट बी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इट माइट बी स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई जगह है जहाँ पे एक बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड डिसाइड करता है कि हाउ द थिंग्स वुड वर्क, जैसे कि कोई भी कुछ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा एग्जांपल्स है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे बोर्ड डिसाइड करती है कि मेरे को ये काम करना है, सो ए बोर्ड मीटिंग कैन बी कॉल्ड, बोर्ड विल पास अ रेजोल्यूशन एंड दैट कैन बी डिसाइडेड। सिमिलरली देयर आर सेवरल अदर इंस्टेंसेस wherein shareholders meetings are called and shareholders pass a resolution. Depending on the type of resolution, it may be ordinary resolution, it may be special resolution, and accordingly that particular thing can be given effect. बट रिजर्व मैटर्स में क्या होता है कि रिजर्व मैटर्स में इन्वेस्टर्स अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दे बेसिकली दे उस वो जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन होते हैं उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बना देते हैं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके कंपनी में इन्वेस्टर आ सकते हैं wherein they might take a stake of 5% for a certain sum of money.
अब उस केस में क्या होता है कि अब मान लीजिए कि कोई एक रेजोल्यूशन पास करना है, शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करना है, जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. सो स्पेशल रेजोल्यूशन इज समथिंग वेर इन 70 मोर देन 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स वुड गिव देयर कंसेंट इन फेवर ऑफ दैट रेजोल्यूशन. तो एक बेसिक सा एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जहां पे आपको कंपनी में दूसरा फंड रेज करना है. अब उस केस में क्या होता है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप कर सकते हैं. अब स्पेशल रेजोल्यूशन में चाहिए 75% से ज्यादा, और इसके पहले जो इन्वेस्टर्स आ चुके हैं आपके कंपनी में उनके पास 5% स्टेक है. सो इफ यू गो बाय द कंपनीज एक्ट प्रोविजंस, यू कैन कंडक्ट इन जनरल you can conduct a general meeting, extraordinary general meeting, take the consent of the shareholders by passing a special resolution, जिसमें आपको इन्वेस्टर के कंसेंट का जरूरत ही ना पड़े. बट इन दैट केस उसमें क्या होगा कि आपके जो पुराने इन्वेस्टर्स है जो कि 5% स्टेक लेके रखे हैं, उनका स्टेक डाइल्यूट हो जाएगा, और उनका कोई से नहीं रहेगा कि आपके कंपनी में आप किस वैल्यूएशन पे फंड रेज कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आप कम वैल्यूएशन पे फंड रेज कर रहे हैं. एक फाउंडर अपने कंपनी में कम वैल्यूएशन पे फंड रेज कर रहा है. इन दैट केस द इन्वेस्टर वुड डेफिनेटली नॉट वांट दैट. सो टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, दे incorporate the reserved matters in a shareholders agreement. अब रिजर्व मैटर्स में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं जहां पे भी उनको लगता है कि वो उनके इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है, इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है. दे वांट कि देयर कंसेंट बी टेकन ऑन दोज पॉइंट्स. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल ये जो मैंने अभी दिया था, दैट इज रेजिंग ऑफ फंड्स. सो इफ यू आर रेजिंग फंड्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, डिस्पाइट being the fact given under the provision of Companies Act that you can pass a special resolution and raise funds by passing resolution through private placement, the investors by shall restrict the rights of the company by drafting a shareholders agreement incorporating the reserved matters. तो रिजर्व मैटर्स में ये लिखा रहेगा कि चाहे वो आपके स्पेशल रेजोल्यूशन से ही आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से आप कर सकते हैं, बट बाय द वर्च्यू ऑफ signing the shareholders agreement, the investors would have the right to restrict the rights of the company, rights of the other shareholders. तो इससे क्या होता है कि आपको अगर फंड रेज करना है या देयर माइट बी सेवरल अदर डिसीजंस जहां पे आपको कुछ करना है, तो आपको इन्वेस्टर से अपना उनका कंसेंट लेना पड़ेगा. सो दिस इज नथिंग बट जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. अब रिजर्व मैटर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है. डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे है, what is the stage of the business, what is the stage of the company, what is the level of fundraise, whether it is a seed fund, whether it is a series A, series B, pre series A, whatever it is, that would depend the drafting of reserve matters. एक बहुत ही कॉमन क्लॉज होता है कि आपको अगर बिजनेस में कुछ चेंज करना है तो आपको इन्वेस्टर का कंसेंट लेना पड़ेगा. दिस माइट बी अ क्लॉज इन द रिजर्व मैटर्स इन अ शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट. अब फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके कंपनी में कोई इन्वेस्टर मिनिमल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करता है, एक कंपनी में एक इन्वेस्टर आके बहुत ही कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करता है, in that case it might so happen that the founder might not be very much comfortable in giving that
तो वेरी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, गॉट डिस्कनेक्टेड, वेरी सॉरी। सो वी वर स्पीकिंग अबाउट रिजर्व मैटर्स। तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर आपके कंपनी में इन्वेस्टर ज्यादा पैसा लगा रहा है, इट माइट हैपन, it would happen that they have invested in a certain business structure. Now if the business structure is changed, they might run into losses. So the investors would want to restrict the rights of the shareholders in that case, and they would want the company to take the consent of the investors before any important decision is being taken by the company. Coming to the fourth important clause, this is the drag along right. अब drag along right में क्या होता है? Drag along right is a very common clause in an SHA. This gives the investor a right to ask the other shareholders, including founders and promoters, to sell all or part of their shares in case they are not provided with an exit. एक जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, the first thing that we discussed in this session was tag along rights. So tag along rights gave the investors an opportunity and a right to tag along if the founders or promoters are selling shares to a third party. But drag along में क्या हो रहा है कि अगर आप इन्वेस्टर को, अगर कोई फाउंडर इन्वेस्टर को विद इन द गिवन टाइम फ्रेम एग्जिट नहीं देता, तो एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में एक एग्जिट क्लॉज होता है। तो उसमें लिखा रहता है कि उनको कब एग्जिट मिलेगा, किस वैल्यूएशन पे एग्जिट आप दोगे, कैसे एग्जिट मिलेगा, आईपीओ होगा, क्या होगा। तो देयर आर सेवरल सब क्लॉजेस एंड देयर आर सेवरल वेज हाउ टू गिव एन एग्जिट टू अ इन्वेस्टर। तो उसमें वो चीज लिखा हुआ रहता है और उसमें टाइमलाइन रहता है कि आप उनको कब तक एग्जिट दे दोगे। नाउ इफ यू आर अनेबल, इफ द फाउंडर्स आर अनेबल टू गिव एन एग्जिट टू द इन्वेस्टर्स विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, उस टाइम पे इन्वेस्टर क्या करती है, इन्वेस्टर कोशिश करती है कि वो थर्ड पार्टी किसी को ढूंढ के लाए ताकि आपका कंपनी जो है, उनका उनका शेयर्स जो है वो सेल कर सके। सो दे वांट अ रिटर्न विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो उस केस में क्या हो सकता है कि वो जब सेल करते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को, दैट थर्ड पार्टी, सो एक एग्जांपल इसमें ले लेता हूं ताकि सबके लिए आसान हो जाए। So say the investor is holding 10% shares in your company. Now the founders have not given the investors exit within a time frame of 3 years, which was pre-decided as per the SHA. After 3 years, when the investors have asked for an exit, the founders could not give them exit. Now the investors have tried and found out other parties who are ready to acquire those shares from the investors who are holding 10% in the company. But it might happen that the new party who is interested in buying the shares from the investor, he might say that, okay, I'm ready to purchase the shares from you, those 10% shares, but I would also like to purchase another 60% or another 70% of the shares from the company. And in that case, the investors would want that the founders and the promoters or the other shareholders should also sell their shares to the third party. तो वो क्या होता है ना, वो ड्रैग करते हैं. So the investors have the power to drag the promoters and the founders and the other shareholders to sell their shares to the third party. ये क्यों होता है? इसके पीछे भी रीजन यही है कि इन्वेस्टर को अपना रिटर्न लेके उनको एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर एग्जिट लेना है. अब जब वो एग्जिट लेते हैं, उस केस में उनको ये देखना है कि अगर कोई पार्टी इंटरेस्ट दिखाता है, पर वो इंटरेस्ट दिखाता है ज्यादा शेयर्स परचेज करने का, एंड इफ द इन्वेस्टर्स शेयर होल्डिंग इज नॉट इनफ to meet their expectations, in that case they would want other shareholders to participate and sell their shares too. इसमें भी टैग अलोंग राइट्स जैसा या आरओएफआर मतलब राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल जैसा जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगा
वो सिमिलर रहेगा। तो इसमें भी जो है बहुत सारे सब क्लॉजेस होते हैं, देयर आर सेवरल सब क्लॉजेस इंक्लूडेड इन ड्रैग अलोंग राइट्स एज वेल। सो व्हेन इट इज ड्राफ्टेड, it should include, I mean it should take a very holistic approach while drafting the drag along rights, तो कि उसमें किसको कैसा राइट्स मिले, इन्वेस्टर्स को कैसा राइट्स मिले, फाउंडर्स, प्रोमोटर्स, अदर शेयर होल्डर्स को कैसा राइट्स मिले, एंड इसको एक विन विन सिचुएशन के हिसाब से उसको ड्राफ्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली सारे लोगों का इंटरेस्ट को देख के दिस पर्टिकुलर क्लॉज शुड बी ड्राफ्टेड, which is the drag along rights. Coming to the last and the fifth important clause of a shareholders agreement, ये होता है इन्वेस्टर्स एग्जिट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है कभी भी किसी भी एसएचए को ड्राफ्ट करने के टाइम पे। अब इन्वेस्टर्स एग्जिट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ड्रैग अलोंग राइट्स में भी, बिकॉज ड्रैग अलोंग वुड बेसिकली बी गाइडेड बाय द इन्वेस्टर्स एग्जिट राइट। तो इन्वेस्टर्स एग्जिट का जो क्लॉज होता है उसको वो गाइड करता है ड्रैग अलोंग को। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन इट अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे फंड रेज कर रहे हैं। अगर आप फंड रेज बहुत इनिशियल लेवल पे कर रहे हैं तो आपको समझना है, the founders have to understand, the promoters have to understand that how long the exit, what would be the exit period, उन इन्वेस्टर को कब तक एग्जिट देना है। एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद द फाउंडर्स वुड डिसाइड कि इन्वेस्टर को किस स्टेज पे एग्जिट देना है, कितने सालों में एग्जिट देना है। सो this is again a lot depends on the founders in this case कि आपको एग्जिट देना कब है। इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशंस होते हैं जब टर्म शीट साइन होती है फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। देयर आर सेवरल कम्युनिकेशंस जिसमें डिसाइड होता है कि इन्वेस्टर्स को एग्जिट कब तक मिलेगा, एंड प्रैक्टिकल टाइमलाइन, प्रैक्टिकल अप्रोच शुड बी टेकन इसमें, जिसमें इन्वेस्टर्स को एक बेनिफिट मिले, अकॉर्डिंगली फाउंडर्स को भी एक बेनिफिट मिले, उनको भी समझ में आए कि कब तक वो एग्जिट दे पाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, you should consider the most important aspect rather is the financial aspect of the company. So you should be very aware, the founder should be very much aware what is the financial aspect of the company, what is the run rate of the company, what would be the how would the company generate cash flows so that they are able to give the exit to the investors. कस्टमर एक्विजिशन कैसा होगा, या फिर अगर प्रोडक्ट कंपनी है तो कैसा वो लोग सेल करेंगे, कितना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स थिंग डिपेंड्स ऑन इट। सो इसमें जो है आपको फिगर्स के ऊपर काम करना है इन्वेस्टर्स के साथ। अकॉर्डिंगली व्हेन यू अप्रोच द इन्वेस्टर्स, द राइट एक्सपेक्टेशंस शुड बी सेट टू द इन्वेस्टर्स, and accordingly on the basis of that the term sheet and the SHS should be signed mentioning how the investors are going to be given an exit. ये 5 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 there are several other clauses as well जो कि इंपॉर्टेंट है। we will not discuss them in detail, but हम लोग थोड़ा सा उस पे भी टच करेंगे। वन इज नॉन कम्पीट। नॉन कम्पीट मतलब आप जो जो फाउंडर्स होते हैं, जो जो प्रोमोटर्स होते हैं, वो नॉन कम्पीट मतलब सिमिलर कोई बिजनेस में ना ही इन्वेस्ट करेंगे, ना ही सिमिलर कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। नाउ देयर इज अ डेफिनेट रीजन बिहाइंड इट कि अगर सिमिलर कोई बिजनेस या सिमिलर कोई चीज कोई स्टार्ट कर देता है तो उस केस में you might give your I mean after raising money in a particular company you might give efforts in another company, तो उसमें इन्वेस्टर्स का लॉस है। so a non compete clause is entered into in the shareholders agreement. Similarly, there is an indemnity clause. Indemnity clause में founders, the promoters indemnify करते हैं कि अगर आपका कंपनी ऐसा हो सकता है कि आप एक फाउंडर का कंपनी फॉर्म हुआ था 2014-15 में, आप फंड रेज कर रहे हैं 2020 में। So in that case, within a period of 5 years, 4 years, the company has conducted several operations. There were several compliances which had to be undertaken. And when the due diligence was taken up by the investors, it might have happened, or it might happen that when you provide some details to the investors that they have asked for, when the founders provide details, the founders might not provide all details, or founders might mistakenly provide lesser details, or maybe they might have missed to provide certain details. तो उस केस में क्या हो सकता है कि आगे चल के
कभी कंपनी के ऊपर पेनल्टी आ सकता है। अब एक इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया है कंपनी के ऊपर, और 1 साल के बाद, और आपने इन्वेस्टर को बता दिया कि मेरे को तो 5 करोड़ रेज करना है, 5 करोड़ में से 5 करोड़ हम लोग इसी तरह से खर्चा करेंगे। नाउ आफ्टर अ ईयर व्हाट हैपेंस, देयर इज अ पेनल्टी, 50 लाख का पेनल्टी लग गया। अब उस केस में जब पेनल्टी लगा, आपको पैसा पे करना है गवर्नमेंट अथॉरिटी को पेनल्टी के हिसाब से। तो आप क्या करेंगे कि ये जो 50 लाख रुपया खर्चा है, आपने इन्वेस्टमेंट रेस किया, आपने वहां से आपने पेमेंट कर दिया 50 लाख। तो अब जो पूरा प्लानिंग था, आपका बजटिंग था इस 5 करोड़ रुपया को कैसे खर्चा करना है, वो पूरा बिगड़ जाता है। नाउ द इन्वेस्टर्स वांट कि आपको एक इंडेमनिटी क्लॉज भी साइन करना है। अब अगर ऐसा कुछ पेनल्टी या ऐसा कुछ नॉन कंप्लायंस किसी भी स्टेज पे आता है, देन इन दैट केस द इन्वेस्टर्स वांट कि द फाउंडर्स एंड द प्रोमोटर्स शुड इंडेमनिफाई, कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है देन they would bear the expenses, the founders and promoters would bear the expenses to, so that कि कंपनी का जो बजटिंग है वो फंडिंग के अमाउंट से वो डिस्टर्ब ना हो। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। एक अनदर इंपॉर्टेंट क्लॉज जो होता है वो है चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स कन्फ्लिक्ट। अब चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि एज वी डिस्कस्ड कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस। सो चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मान लीजिए, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे मीटिंग्स होना है, बहुत सारी चीजें होती है जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है। अब उस केस में क्या करते हैं कि आप तो जब जब शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो गया, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में इन्वेस्टर्स ने क्या किया, आपके राइट्स को बहुत मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और कंपनी के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है, और उस पे आपने जो ड्राफ्ट हुआ था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे, उस केस में उसमें कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोविजन के हिसाब से लिखा हुआ है। अब जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बन गया, द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट व्हिच हैज बीन ड्राफ्टेड, दिस इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑन देयर सेवरल पॉइंट्स, and this is a very common thing which will definitely happen. So what happens in the case of conflict? So the investors want that the shareholders agreement should prevail if there is a conflict between the chartered document and the shareholders agreement. And how is it done? The articles of association is usually entrenched by the investors. They want the founders to entrench, they want the company to entrench the articles of association, so that the restrictive clauses of the shareholders agreement finds a place in the articles of association itself, so that the normal provisions of the companies act as mentioned in the articles of association is overridden by the stricter clauses and stricter provisions of the shareholders agreement. अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। स्टार्टअप्स में क्या होता है कि when a company started, there are several founders, there are several employees who might work behind a certain idea. कोई एक चीज डेवलप कर सकते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ है जिसमें जो फाउंडर था, उन्होंने अपने से, वो फाउंडर ने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया और उनको वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होके मिल गया। अब ये जो ट्रेडमार्क है ये उनके नाम पे आ गया है। द ट्रेडमार्क अथॉरिटी, द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क्स, दे हैव ग्रांटेड द ट्रेडमार्क इन द नेम ऑफ द फाउंडर। अब जब कंपनी के पीछे इन्वेस्टर पैसा लगा देती है, they have put the money on the founders, on the company, on the brand. तो वो जो ब्रांड है, उस ब्रांड को इन्वेस्टर चाहती है कि वो ब्रांड कंपनी का हो, ना कि किसी फाउंडर का। एंड टू प्रोटेक्ट दैट, ताकि वो ब्रांड कंपनी का रहे, द इन्वेस्टर्स वुड वांट कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो कंपनी के नाम पे हो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी क्या होता है कि एक अग्रीमेंट आप ड्राफ्ट किए हैं, उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो कि आगे चल के ये क्लॉज वैलिड नहीं हो सकता है। तो उस केस में जो दूसरा, so the agreement would mention that अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लॉज इनवैलिड होता है तो इससे दूसरा कोई क्लॉज को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, and other clauses would stand as good as the agreement. And the last and the final thing is dispute resolution and governing laws. तो अगर कोई dispute होता है agreement लेके, how would it be treated? That is a very important part.
तो एक डिस्प्यूट हो जाता है कंपनी में किसी भी पार्टी के साथ, या कोई एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या कोई एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के साथ, प्रोमोटर के साथ, फाउंडर के साथ, किसी के साथ भी एक डिस्प्यूट हो सकता है। उस केस में अगर डिस्प्यूट होता है, देन इट डिपेंड्स, तो वो एसएचए डिफाइन करेगा कि उस डिस्प्यूट को आप रिजॉल्व कैसे करोगे, थ्रू आर्बिट्रेशन और डायरेक्टली गोइंग टू एंड अप्रोचिंग द कोर्ट्स, हाउ इज इट गोइंग टू बी सेटल्ड। तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक अलग से क्लॉज मेंशन रहना चाहिए कि आप उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल करोगे। अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू होता है तो कैसे होगा, अगर कोर्ट सेटलमेंट होता है तो कैसे होगा। सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली, ताकि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे। और अनदर इंपॉर्टेंट चीज इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में होता है, वो है गवर्निंग लॉज। अब गवर्निंग लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका कंपनी जो है, कोई एक कंपनी रजिस्टर्ड हो सकता है इंडिया में किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी में। आपके जो इन्वेस्टर है वो शायद सिंगापुर से है या यूएस से है। अब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो अगर कौन से कंट्री का लॉ वहां पे एप्लीकेबल होगा डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, अगर वो मेंशन नहीं है, देन इन दैट केस इट लीड्स टू एम्बिग्विटी। द इन्वेस्टर्स माइट से दैट ओके, कम टू यूएस, we will file a case in the US. Or the founders might say that come to this city, we will do a case in this city, this part of the country. So उसमें एक ambiguity हो सकता है। So just to remove that ambiguity, the governing laws कि कहाँ का है, अगर इंडिया में आपको डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है तो इट शैल बी एज पर द लॉज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर सिंगापुर में करना है तो सिंगापुर का लॉस, एंड अकॉर्डिंगली। तो वो चीज एक एमिकेबल डिसीजन से आता है, इन्वेस्टर के साथ फाउंडर बैठ के वो डिसाइड करते हैं, जब टर्म शीट साइन होता है तभी वो डिसाइड हो जाता है। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि गवर्निंग लॉज क्या है, दैट शुड फाइंड ए प्लेस इन द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। So we have almost discussed most of the points that should find a place in the shareholders agreement. कब आपको क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए before signing an SHA. Uh, so I've specifically conducted this session in both Hindi and English, ताकि I mean बहुत सारा changes हुआ है। कल रक्षाबंधन था, तो Chinese companies ने, we have seen that Chinese राखी making companies, they have incurred a loss of 4,000 crores। तो हमारे देश में अभी बहुत सारे founders आ रहे हैं, बहुत सारे नए startups आ रहे हैं, and the investment is on rise. People are showing interest in India, investment aa rahe hai. So the very important thing is drafting of SHA, and we took this session today in the webinar. If any one of you feel, if you have any questions, you can write to us at info@taxmantra.com. अगर आपको SHA ड्राफ्ट करना है, you can come up to us, you can write to us। किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए फंड रेजिंग असिस्टेंस में, please let us know, we'll be happy to help. Thank you.